ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے کی نظر آج کی سرخیوں پر۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے وزیر اعظم نریندر مودی کا ورچوئل طریقے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کی پالیسیوں میں اصلاحات ضروری۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی صحتیابی کی شرح مزید بہتر ہو کر ہوئی 82.14%۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1217 مزید معاملات درج، تقریباً 2000 مریض ہوئے روبہ صحت۔ اور سیاحتی مقام گلمرگ کے اوپری علاقوں میں رواں موسم کی پہلی برف باری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اقوام متحدہ میں اصلاحات کا عمل مکمل کرنے کی ازحد ضرورت ہے۔ آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 1945 میں جب اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی تب کے اور آج کے معاملات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ اس اہم ادارے کی پالیسیوں میں وقت حاضر کے مطابق اصلاحات لائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس بات سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ دہشت گردی کے کتنے ہی حملوں نے پوری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا ہے، اور ان حملوں کی وجہ سے متعدد لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور بڑی تعداد میں لوگ بے گھر بھی ہوئے۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ پچھلے 8 مہینوں سے پوری دنیا کووڈ-19 سے جوجھ رہی ہے۔ پورے وشو سمودائے کے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جس سنستھا کا گٹھن تب کی پرستھتیوں میں ہوا تھا، اس کا سوروپ کیا آج بھی پراسنگک ہے؟ صدی بدل جائے اور ہم نہ بدلیں تو بدلاؤ لانے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بیتے 75 برسوں میں संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج کلگام ضلع کے بیشتر علاقوں کا دورہ کر کے دریائی وشو پر تعمیر ہو رہی باندھ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے محکمے کو ہدایت دی کہ وہ کام کاج کو تیز رفتاری کے ساتھ جاری رکھے تاکہ برف گرنے سے پہلے یہ باندھ مکمل ہو سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ ایک عوامی دربار میں بھی شرکت کی۔ دربار کے دوران انہوں نے کئی عوامی وفود سے ملاقات کی اور ان کے مطالبات بغور سنے۔ انہوں نے عوامی مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے جن ابھیان کے تحت کسانوں میں زرعی شعبے سے متعلق آلات کشاورزی بھی تقسیم کیے۔ صحت اور طبی تعلیم کے فائنانشل کمشنر اتل ڈلو نے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کا دورہ کر کے آئسولیشن وارڈ، آکسیجن سپلائی پلانٹ اور کنٹرول روم کا معائنہ کیا۔ موصوف نے کووڈ-19 کے پیش نظر مریضوں کو دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بعد میں انہوں نے اسپتال انتظامیہ کے سینئر افسران کی ایک میٹنگ بھی طلب کی۔ ملک میں روبہ صحت ہونے والے افراد کی شرح مزید بہتر ہو کر 82.14% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 93,000 سے زیادہ کووڈ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا کہ روبہ صحت ہونے والے افراد کی تعداد 48,19,000 تک پہنچ گئی ہے۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے اور آج مزید 1217 مثبت کیس سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسوں کی تعداد 70,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ آج کے مثبت کیسوں میں کشمیر ڈویژن سے 497 اور جموں ڈویژن سے 720 ریکارڈ کیے گئے۔ اسی دوران پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1937 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جبکہ 20 مریض کرونا وائرس کے شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر نیپورہ میر بازار قاضی گنڈ علاقے میں کل شام ایک سڑک حادثے میں 2 بہنیں جاں بحق ہوئیں، جبکہ ڈرائیور سمیت 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب جموں سے سری نگر آ رہی ایمبولینس گاڑی شام 8:30 بجے کے قریب سڑک سے لڑک گئی۔ اس حادثے میں جاں بحق 2 خواتین کا تعلق کشتواڑ سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے بانڈی پورہ ضلع کے سنبل علاقے سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں کو ملیٹنسی کی راہ اختیار کرنے سے باز رکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بانڈی پورہ پولیس کے مطابق سنبل علاقے سے تعلق رکھنے والے ان 3 نوجوانوں کی سنبل پولیس اسٹیشن میں کاؤنسلنگ کی گئی، جس کے بعد انہیں گھر والوں کے حوالے کیا گیا۔
जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इतू की सरबराही में आज एक मीटिंग के दौरान जिले में कोविड-19 के मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। इस दौरान मौसूफ ने कोविड-19 के मुस्बत मामलों की पूरी तरह से मौसर निगरानी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर प्लान मुरतब करने की मुतालिकीन को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बर वक्त मौसर इकदाम किए जा सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर ने एक बार फिर लोगों से कहा कि कोविड-19 के हवाले से रहनुमा खतूत और एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल करें। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले के सिलसिले में जिला सतह के कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले मास्टर ट्रेनर्स का तरबियती सेशन दीही तरक्की और पंचायती राज की सेक्रेटरी शीतल नंदा की सरबराही में मुनाकिद हुआ। इस सेशन के दौरान शुरका को बैक टू विलेज के तीसरे मरहले के ऐसन इनेकाद के लिए ज़रूरत तरबियत और जानकारी फराहम की गई। एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी में आज ज़रई शोबे में रोज़गार के मौक़े के मौजू पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर अल्ताफ़ एजाज अंद्राबी ने कहा कि ज़रई शोबे में कई इस्लाहात की ज़रूरत है। इसके अलावा काश्तकारों के खेती बाड़ी के तयीन नज़रिए को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका शोबे में रोज़गार के मौक़े पैदा करने की काफ़ी गुंजाइश है, तहम नौजवानों को जदीद खतूत पर रहनुमाई की ज़रूरत है ताकि बेरोज़गारी दूर करने के अलावा मुतल्लिका शोबे की तरक्की भी मुमकिन हो सके। बीजेपी ने पार्टी हेडक्वार्टर जवाहर नगर श्रीनगर में गांधी जयंती के मौके पर आज सेवा सप्ताह प्रोग्राम के इख्तिताम और आत्मनिर्भर भारत हफ्ते के आगाज़ पर एक तकरीब मुनाकिद की। तकरीब में पार्टी वर्करों के अलावा पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के नायब सदर सोफी यूसुफ और पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने शिरकत की। दोनों लीडरान ने एडवोकेट बाबर कादरी की हलाकत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की और मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार करने की इंतजामिया से अपील की। नाजायज़ तामीरात के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए लावडा की इन्फोर्समेंट विंग ने सैदा कदल और रैनावारी इलाकों में कुछ तामीरात मुनहदम की हैं। इन नाजायज़ तामीरात कोविड-19 लॉकडाउन की आड़ में तामीर की गई थीं। नाजायज़ तामीरात में मुलविस अफराद के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की गई हैं। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने कुपवाड़ा के गोटलीपुरा हाईहमा इलाके में गैरकानूनी तरीके से स्टोन क्रशर हॉट मिक्स प्लांट की तश्कील के लिए साबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और दीगर कई अहलकारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बड़गाम जिले के चरार शरीफ खान साहब बीरवा और कई दीगर इलाकों में कल शाम तेज हवाओं से सेब और नाशपाती के मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुतासरा बाग मालिकान ने मुआवजे की गवर्नर इंतजामिया से अपील की है और KCC लोन मुआफ करने की भी मांग की है। श्रीनगर शहर में पिछले 2 रोज़ से कई मकामात पर कूड़ा करकट जमा रहने की वजह से इलाकों में बदबू के अलावा हिफ्ज़ान सेहत के दरपेश खतरात के पेश नज़र लोगों ने बरहमी का इजहार किया है। इस हवाले से DD न्यूज़ ने जब कमिश्नर SMC से बात की तो उन्होंने बताया, गाड़ियाँ दिन को चलती हैं जो शहरी श्रीनगर से सारा कूड़ा करकट जमा करके डंपिंग साइट पे पहुंचाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ से जो हमारा CEO था, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर और फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो लीव पर चला गया 1 सितंबर को। और फिर हमने यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मसला उठाया कि किसी और को चार्ज दिया जाए। दफ्तरी में इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब चूंकि उन्होंने ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया, तो आज वो कर रहे हैं। तेल भी उनको दे दिया गया है पंप वालों को। उनका ये जो था लगभग 80 लाख उनका हमारे पर कर्जा था, तो उनको पैसे दिए गए कल आज। तो सुबह ही गाड़ियाँ निकली, शहर से हर जगह से कूड़ा करकट उठाया गया, डंपिंग साइट पे लिया गया। इस वक्त शहर श्रीनगर में कहीं कूड़ा करकट नहीं पाएंगे। बलपोरा शुपियां में आज कृषि विज्ञान केंद्र के एडमिनिस्ट्रेटिव कम लेबॉरेटरी ब्लॉक का संग बुनियाद ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने रखा। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां चौधरी मोहम्मद यासीन भी मौजूद थे। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कृषि विज्ञान केंद्र की अहमियत उजागर की। ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस मौके पर कहा कि इस केंद्र से किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। सनपा बीरवा के बशीर अहमद भट्ट कौमी अवार्ड याफ्ता दस्तकार हैं। उन्हें चंद साल पहले सोजनी की दस्तकारी के लिए कौमी अवार्ड से नवाजा गया। बशीर अहमद भट्ट ने मुल्क के कई रियासतों के साथ साथ ईरान में भी मुनाकिदा नुमाइश में शिरकत की। इस आला दर्जे के दस्तकार का मानना है कि आलमी सतह पर मशहूर कश्मीरी दस्तकारियों में नई रुख फूंकने की ज़रूरत है ताकि नौजवान नस्ल की इनमें दिलचस्पी बढ़ जाए। सेकंड पोजीशन खतर सिलेक्शन कह वरी ब्रो यथ मज मे 10,000 रुपये मील नकद बेच सर्टिफिकेट वनकस द्रजर हेकान तूत अत पे पोस जीनित क्या यूत वनकस खर्च गो तब पे शुक्र खुदा वंद करीमस कुन ये पे पानस बोन नफर वुचान या कहें कर बेकार दोस बिहत मगर शुक्र खुदा वंद करीमस कुन इज्जत सान पन
मिडल क्लास रोजगार ज़ेनान। तिजारत सनत और हिरफत की कश्मीर में मरकजी बॉडी एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर की 13वीं सालाना जनरल मीटिंग आज श्रीनगर में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान साल 2020-21 के लिए इस मरकजी बॉडी के मुख्तलिफ ओहदेदारों का इंतखाब अमल में लाया गया। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन कश्मीर ने आज साल 2020-22 के लिए सदर का इंतखाब किया। आज एसोसिएशन की सालाना जनरल मीटिंग में ये चुनाव किया गया। इस चुनाव में एसोसिएशन के नायब सदर के अलावा दीगर जोमा का भी इंतखाब अमल में लाया गया। बीजेपी जानिब से अनंतनाग की खनबल हाउसिंग कॉलोनी में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी के कई कारकुनों ने अपने खून का अतिया दिया। तकरीब में पार्टी के जम्मू कश्मीर के नायब सदर सोफी यूसुफ, महिला मोर्चा के नायब सदर रुमैसा रफीक के अलावा कई दीगर वर्करों ने भी हिस्सा लिया। जीएमसी बारामूला में आज एक खून के अतिया के कैंप का एहतमाम किया गया। जीएमसी बारामूला और राष्ट्रीय राइफल्स के बाहमी इश्तराक से मुनाकिदा इस कैंप का इफ्तिताह मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सईद मसूद ने किया। इस दौरान कई सिविल और फौजी एहलकारों ने खून का अतिया पेश किया। खून का अतिया पेश करने वालों का पहले कोविड टेस्ट किया गया। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम के दौरान तलबा और दीगर शुरका को नशावर चीज़ों के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम के शुरका ने अहद किया कि वो समाज को नशावर चीज़ों से पाक बनाने में अपना भरपूर रोल निभाएंगे। मेन टाउन फेस्टिवल पांपुर इलाके के लोगों ने शिकायत की कि उनके इलाके में सड़क की खस्ताहाली की वजह से न सिर्फ इलाके के लोगों बल्कि ट्रांसपोर्टरों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़कूरा इलाके के लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि इस सड़क की तजदीद व मरम्मत को फौरी और यकीनी बनाया जाए ताकि इलाके के लोगों को राहत मिल सके। वादी की मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी, अदब और सकाफती तंजीमों ने मारूफ रूहानी शख्सियत और साबिक जोनल अफसर कुकरनाग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। वादी के और समाजी कारकुन और मजहबी शख्सियत वादी के एक और समाजी कारकुन और मजहबी शख्सियत मोहम्मद ताहिर रफीकी का कल इंतकाल हो गया। मरहूम की इज्तिमाई फातह खानी कल यानी 27 सितंबर को उनके आबाई मकबरा वाक़े रफीकी कोचा फतेह कदल में सुबह 10:30 बजे अंजाम दी जाएगी। वादी कश्मीर के सियाहती मकाम गुलमर्ग में आज इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग की अफरवट पहाड़ी के अलावा मज़ाफ़ात के पहाड़ी सिलसिले में भी बर्फ़ की चादरें देखी गईं। वाज़ेह है कि खुश्क मौसम के बाद मौसम में तब्दीली आने के साथ ही इन पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई, जिससे इस इलाके के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में भी दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। इस दौरान गुलमर्ग में कई सयाहों को भी बर्फबारी का लुत्फ़ उठाते हुए देखा गया। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने या बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।